Today we are starting the doubt class as you have given some of the topic which you have to give the tomorrow's exam. So we'll check it that one. Okay. First of all, we'll see the atom and structures. The chapter is already done and I explained plenty of times, but also you guys have a doubt surprisingly. So let's start. What is an atom? Atom is what when you sharpen your pencil. You can see here when you sharpen your pencil. Okay. When you sharpen your pencil, the fine grains of the carbon saved off the point. If you could pick up a single grain of the carbon, you would be able to make a mark with it exactly as you do with the pencil point. So that atoms मतलब क्या होता है, मैंने बोला था अगर आपका पास एक बुक है, ठीक है, एक बुक है आपके पास, तो एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, है ना, एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं. तो एक बुक क्या है आपका, एक बुक एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, एक बुक आपका एलिमेंट होता है. और एटम क्या होता है, वो जो पेपर है उसको हम लोग बोलते हैं एटम, ठीक है. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, जिस तरह से आपका ये एक केक है, तो एक केक आपका क्या होगा, केक आपका क्या हो गया, एक बड़ा सा एक पीस है, ठीक है, एक केक है, तो केक आपका हो गया एलिमेंट. तो ये अगर छोटा सा आप स्मॉल पीस निकाल दिए हो केक से, तो ये स्मॉल पीस क्या होगा, आपका एटम हो गया. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटम. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटम, ठीक है. उसी तरह से अगर आप देखते हैं अगर आपको दिया एक पैकेट में बहुत सारे चॉकलेट्स है, तो ये पैकेट कंप्लीट क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है. और ये आपका ये चॉकलेट अगर हम पैकेट से निकाल के खाते, सब पैकेट तो एक बार में नहीं खा सकते, वन एट अ टाइम वी कैन नॉट डू इट. But what we can do, we can take out one by one chocolates and we can have it. So that one by one chocolate is called the atom. ठीक है. So smallest particle of an element, the smallest particle of an element is called the atom. I hope it is clear now. So the atom is what? Atom is the smallest particle of element, that is the properties of the element. तो उसका properties होता है, ठीक है. जिस तरह से मैंने बोला था केक का केस में, अगर आपका एक बड़ा सा एक केक है, तो अगर केक से यहाँ से एक पीस हटा दोगे, यहाँ से अगर ये पीस हट गया, तो आपका ये पीस क्या दूसरे टेस्ट में बन जाएगा. आपका ये मान लो स्ट्रॉबेरी का है, ठीक है, तो ये आपका ये जो छोटा सा पीस हो तो वैनिला बन जाएगा, नहीं बनेगा ना. तो आपका ये भी स्ट्रॉबेरी ही बनेगा. द स्ट्रॉबेरी विल रिमेन एज इट इज. सो इफ़ यू हैव अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट which will separated from it, that is called the atom. And this atom have the same property, same गुण जो होता है, टेस्ट, फ्लेवर, आपका रंग हुआ, जो भी है, अगर आप यहाँ से निकल रहा है, तो that will be remain as it is. So that is called the atom. That is the properties of an atom. So how you define it? The atom is the smallest particle of an element that has all the properties of the element is called the atom. Now, how many types of elements is there? So 118 elements are there. 118 elements is still it is known. Okay, so it's completed now. Now the structure of an atom. We can see the structure of an atom here. Okay, the structure of an atom. This is the structure of an atom. We can see here. This is the structure of an atom. Even though an atom is extremely small, we cannot see from our eyes, we will be surprised to know that within the atom there are three different types of particles. So there is a three different types of particles, that is neutron, proton and electron. So these are the atoms. These are the atomic particles. Okay, so these are the atomic particles. So what are the atomic particles? Neutron, proton and the electron. These are also called the fundamental particles also, all the subatomic particles. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, उसको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं और सब एटमिक पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो ये जो थ्री पार्टिकल्स है, even though an atom extremely small, you will be surprised to know that within atom there are three different types. So that means what are the three different types? Neutron, proton and electron are the three different types of atoms. Okay, so the atoms, how we can define it? Atoms, elements, ठीक है, उसको atoms में convert किया तो उसको थ्री टाइप्स में, तो थ्री टाइप्स में क्या आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इतना क्लियर है. अभी देखते हैं उसको हम लोग, इस पार्टिकल्स को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं
फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं और सब एटम भी बोलते हैं, ठीक है। द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस बीच का जो भाग होता है, ओके, द सेंटर पार्ट ऑफ एन न्यूक्लियस इज कॉल्ड द सर्कल इज कॉल्ड द व्हाट, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में आपका क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में आपका होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस होता है उसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, और जो बाहर होते हैं द सर्कल विच इज सर्कल हियर, द सर्कल द रिमेन एज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर होता है, ठीक है। अब मान लो एक घर के बाहर ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, और ये जो घर पे फैमिलीज़ हैं उसको हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो न्यूक्लियस, ये आपका घर हो गया, ये घर में आपके अंदर में कौन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और जो घर के बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। प्रोटॉन्स कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड द न्यूट्रॉन्स कैरीज अ नो चार्ज। उसमें नो चार्ज होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन के पास है वो ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के पास भी होता है, क्योंकि फैमिली में आप लोग शेयरिंग करते हैं, फैमिली में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है आपका न्यूक्लियस में, ये जो प्रोटॉन का जो प्रॉपर्टीज़ है वो न्यूट्रॉन को भी जाता है, और जो न्यूट्रॉन का प्रॉपर्टीज़ है वो प्रोटॉन को भी जाता है, ठीक है। जिस तरह से अगर कोई चीज़ मम्मी पापा ने समथिंग हैज़ बॉट फॉर यू एंड योर ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, सो दे विल ब्रिंग द सेम थिंग, दे विल ब्रिंग द सेम थिंग फॉर यू बोथ, राइट। आपके लिए छोटा सा, भैया के लिए थोड़ा बड़ा सा, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपके लिए भी वही चीज़ लाएंगे जो भैया के लिए लाए। सो क्या होता है, दिस इज़ अ प्रोटॉन एंड दिस इज़ अ न्यूट्रॉन। सो वी कैन से दैट that whatever they will bring, they will same as it is for both the member of the family. That is, if the proton के लिए जो लाते हैं, जो न्यूट्रॉन के लिए भी वही लाते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, this one is your nucleus where we can find it proton and the न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन, और जो बाहर है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या होता है, देयर इज नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो दिस आर द चार्जेस ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। नाउ वी कम टू द व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम। Characteristics of an atom is what? The number of a proton in the atom is fixed for an element. It is what distinguish an atom of one element. तो आपका क्या है, अगर कोई न्यूक्लियस में ये जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर ये बोल दिया है कि आपका इतना ही है, ठीक है, अगर प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। सो दैट इज फिक्स, दैट इज व्हाट, फिक्स, वट एवर द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज देयर। न्यूट्रॉन का तो कुछ नहीं होता है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो भी है वो सिमिलर जाएगा, किसके लिए जाएगा, एटॉमिक एलिमेंट के लिए जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड द डिस्टिंग्विश एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम दैट ऑफ द another. Thus the atom of an element are identical means it's a separate, but the number of an atoms are same in this particular atomic structure and the fundamental particles, whereas the atom of the different elements are different. तो अगर ये आपका कार्बन का हो गया एटमिक स्ट्रक्चर, और ये आपका प्रोटॉन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन और किसी का भी है, कार्बन का एटमिक स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। आपके पास अगर आपको बोलते हैं तो नाइट्रोजन का सेम है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन का तो सेम नहीं होगा, है कि नहीं। सो द एटमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन नाइट्रोजन इज डिफरेंट, वेयर एज द सेम एटमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेम पार्टिकल्स हैज द सेम एटमिक structures. Okay, so these are the what characteristics of the atom. Okay, now we move on to the nucleus. Molecules. The molecules is what? Wait.
Okay, molecules is what? The most most atoms do not exist independent in nature. So that means the atoms do not exist independent, मतलब वो खुले environment में नहीं मिलते, यहाँ जहाँ तहाँ वो नहीं मिलते. Some of the most of the atoms, so they are formed in the combined form. अगर आपको देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कंबाइंड, वो दोनों ही मिलता है एनवायरनमेंट में, लेकिन वो खुले में नहीं मिलते. अगर वो खुल जाते हैं, अगर वो बंध जाते हैं, दे मेकिंग अ बॉन्डिंग and the friendship. When they make a friendship, they make a compound that is called the water. So that's why they are talking about here is a molecule. So molecule, they're not one or more atom together form the molecule. So that means one or more atom which forms the molecules. तो आपको मालूम हो गया, अगर आपको सिंगल लेते हैं तो उसको एटम या तो एलिमेंट बोलते हैं, एटम या तो एलिमेंट बोलते हैं. और जो कंबाइंड फॉर्म में होता है, जिस तरह से आपका वाटर हो गया, तो वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उसी तरह से हम लेते हैं यहाँ पे वाटर को. अगर हम लोग वाटर को लेंगे, ठीक है, इफ विल टेक इट अ वाटर हियर, वाटर हियर, सो वाटर का क्या होगा, वाटर का वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का क्या होगा, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल एंड द एटम. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ. Now we move on to the next topic, that is a molecular formula. अब यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू काइंड्स, दैट इज एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ईच मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स. आइडेंटिकल एटम्स मीन्स व्हाट, द हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ वन एटम एंड ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ अनदर एटम. व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल ऑफ water. Different atomic structures, when they comes together, they form a one molecule with the same properties, that is called the water. water को तो हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते. वाटर के हम लोग यहाँ से पानी, एक गिलास पानी से टेक आउट, इसको हाइड्रोजन दे दो और इसको ऑक्सीजन दे दो. ओके, टू फ्रेंड्स आर सिटिंग टुगेदर. The two friends are sitting together when someone came to your guest. So that time one of you likes hydrogen and one of you likes oxygen. So your mother, your auntie bought one glass of water. So you cannot say that give hydrogen to him and give oxygen to him. We cannot do like that, right? So when they combine together in environment, okay, because we can know that in environment the atoms, molecules are not free. Atoms and molecules are not free, they come in the combined form. Okay, they combine together to form the compound. उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रेंडशिप भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, द ईच मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स. आइडेंटिकल एटम्स मीन्स हाइड्रोजन का अपना एटम होता है, ऑक्सीजन का अपना एटम होता है, और दैट विल नॉट सिमिलर विद ईच अदर, दे आर नॉट सिमिलर विद ईच, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द आइडेंटिकल एटम्स. ठीक है, molecules of compounds, the each molecules is made up of atoms of different elements that have combined in a fixed proportion. So अभी हम लोग क्या बोला, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है. तो हाइड्रोजन का हमको ये पसंद नहीं है, तो आप ऐसे करो, तो जो 2 एटम्स है हाइड्रोजन का आप ले लो और ऑक्सीजन का हम ले एक दिन के लिए. हाँ, ऐसे बोलेंगे तो ये कंप्लीट होगा, SO2 कंप्लीट होगा, नहीं होगा, इट विल नॉट फॉर्म एज एन वाटर. लेकिन आपका सेंस क्या है, आप बोल रहे हैं कि मेरा पास वाटर है H2O, लेकिन एक दिन के लिए मैंने चेंज कर दिया ये, तो आपका तो वाटर तो बन ही नहीं रहा है ना. that will not form as a water, it will form a different element. So that's why it is called, it is a fixed proportion, they have a fixed proportion and they are identical. So that's why they can form the molecule, they can form the molecules of a particular compound. Understood? I hope it is clear now. Okay, now molecular formula is here.
The molecule is represented by a molecular form. For example, the molecular formula is written as the symbol of the element. अभी यहाँ पे सिंबल है कि हाइड्रोजन का हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का हम लोग क्या लिखते हैं, H लिखते हैं. हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला. ठीक है, रिटर्न एज द सिंबल, इसको हम लोग सिंबल भी बोलते हैं. ठीक है, द फॉलोड बाय द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल एज अ सबस्क्रिप्ट. फॉर कंपाउंड्स the symbol of each element followed by the number of atoms of that element present in the molecule is given in the chemical formula. Okay, now we come to the what atomicity. What is atomicity now? What is atom and city? Atom city में रहता था तो उसको हम लोग नाम दे दिए atomicity. नहीं, now check what the atomicity. Okay, atomicity is the total number of atoms in a molecule. तो एक मॉलिक्यूल में, मतलब एक मॉलिक्यूल में, ये जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है. ठीक है, लेकिन वो जो एटम है वो फिक्स्ड है. और यहाँ पे कितना एटम्स है, 2 + 1, दैट इज अ टोटल एटम इज 3 एटम्स वी हैव हियर. द मॉलिक्यूल्स में भी मोनो एटमिक, मॉलिक्यूल्स में भी यहाँ पे मोनो एटमिक भी हो सकता है, डाई एटमिक भी हो सकता है, और ट्राई एटमिक भी हो सकता है ना. तो यहाँ पे कि एटमिसिटी इज अ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स में भी एटमिक, डायटमिक, ट्राइएटमिक और पॉलीएटमिक, 2 या 3 से ज़्यादा. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमिसिटी बोलेंगे. एटमिसिटी क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स. व्हाट इज एटमिसिटी? एटमिसिटी इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, सो दैट इज कॉल्ड द एटमिसिटी. ठीक है, अभी नेक्स्ट कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, यू जस्ट गो थ्रू दिस मॉलिक्यूल्स. नाउ अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट इज व्हाट, सी आर्गन इज देयर, नियॉन इज देयर, हीलियम इज देयर. ओके, सो दे आर मतलब दिस वन व्हाट, मोनो एटमिक. डायएटमिक क्या है आपका, नाइट्रोजन N2 है. ठीक है, ऑक्सीजन O2 है. ठीक है, एंड द हाइड्रोजन इज H2 है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डायएटमिक. ठीक है, ट्राइएटमिक क्या आता है, ओजोन O3 है, 3 है. अगर मोनो आता है, इफ इट इज अ मोनो देन इट इज अ 3. इफ इट इज अ ट्राई, सॉरी, if it is a mono then if it is a mono then it's a 1. Di means it's a 2, and tri means it's a 3. Okay, so if there is an one atom, then one molecule, then one atom, then we can say the monoatomic. ठीक है, मोनोएटमिक मॉलिक्यूल. यहाँ पे अगर 2 है तो डायएटमिक मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 3 है तो ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, और यहाँ से 2 या 3 से 4 से ज़्यादा है तो दैट इज कॉल्ड द पॉली. दैट P4 है, P4 है, दैट इज मोर देन 3, देन इट इज कॉल्ड द पॉली. ओके, इफ इट इज S8 देन 8 इज है, सो इट इज़ अ पॉली. ओके, पॉली मीन्स 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ. Now the next point is the molecule formula of the compound. So we can see there is a molecular formula of the compound we have here: barium chloride, zinc hydroxide. Okay, so these are the molecular formula. The definition is given here. The molecular formula is a symbolic representation. It is also known as the chemical formula. Okay, representations, present किससे करता है, represent मतलब क्या होता है, प्रेजेंट करना. रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, प्रेजेंट करना. ठीक है, तो प्रेजेंट हम लोग सिंबॉलिक करते हैं. प्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबॉलिक करते हैं. और सिंबॉलिक कैसे होता है, तो कार्बन का C होता है, कार्बन का क्या होता है, C होता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला. ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ व्हाट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. तो आपका ये जो ये क्या है, द इम्पॉर्टेंट वर्ड विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इज व्हाट, द present, represent, and the present is the same. If that atom and the molecule represented by the symbol, then it is called the molecular chemical formula. ठीक है, significance you go through with that. अभी यहाँ वैलेंसी है. ठीक है, अभी यहाँ पे वैलेंसी हम लोग ने पढ़ा था वहाँ पे. ये क्या आपका, ये आपका न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस में 2 पार्ट होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. तो आपका यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है, जो ये ऑर्बिट और ये एक्सिस में अगर कोई भी एटम या 2 एलिमेंट है तो
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वैलेंस बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट, क्योंकि आपका क्या होता है सोडियम क्लोराइड, वो होता है सोडियम का होता है आपका 287, ठीक है। सोडियम का आता है 287, ठीक है। तो आपका ये न्यूक्लियस आ गया, आपका ये क्या आ गया, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 2 आ गया, तो आपका यहाँ पे 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर का क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन कलर का क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ग्रीन कलर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड में होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव साइड में होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जो 7 है, लास्ट शेल, दिस इज कॉल्ड द लास्ट शेल, ओके, दिस इज कॉल्ड द लास्ट शेल। अगर इस लास्ट शेल में अगर आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसको हम लोग वैलेंसी भी बोलते हैं, 7 को वैलेंसी भी बोलते हैं या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर नाउ। Okay, variable valency means a different different electrons are present in the nucleus, that is called the valence, variable valence, okay। अभी देखते हैं आयंस, ठीक है। इतना तक क्लियर है। द नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंडिंग यू ऑफ द आयंस, वेट।